Okay, ji. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. So here I am with question number 7 and question number 9. These two questions are very, very, very important, and you can say a bit difficult as compared to the previous questions, right? One of the question was in 2004 Federal Board paper और एक मेरा ख्याल है 2011 में है. So ये दोनों questions important हैं. 7 and 9. They are almost the same. Okay, let us read the statement first. ये 3 डायमेंशनल शेप का क्वेश्चन है, ठीक है. बोथ थे रेक्टेंगल, सिंपल रेक्टेंगल थे. ये 3 डायमेंशनल शेप है. दैट्स वाई इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट, but be vigilant. I'm gonna try my best inshallah to make it easy for you people. A box with a square base and open top is to have a volume of 4 cubic dm. पहले तो 3 डायमेंशनल शेप को समझ लें. Remember boys and girls, 3 डायमेंशनल शेप में we always have length and width. ये मैं क्या कर रही हूँ? Okay, let us say ये होती. अब इसमें यू कैन सी देर इज़ डिफरेंट, लाइक बेस आपकी स्क्वायर नहीं है. यहाँ पे ये एक्स होता, ये वाई होता, और ये आपकी हाइट कंसिडर होती, ठीक है. बट हियर यू कैन सी वी हैव स्क्वायर बेस, विच मीन्स ये जो हमारी बेस है दिस हैज़ ऑल द साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है. सो इट मीन्स देयर वुड बी नो लेंथ विड्थ, इट वुड बी जस्ट लेंथ इन द बेस. सो इट मीन्स दो साइड्स तो आपकी हो गई एक्स एंड एक्स, ठीक हो गया. लेट्स टॉक अबाउट द हाइट नाउ. जो आपकी हाइट है जो यहाँ पे एज से दी हुई है, यू कैन कॉल इट एज y for our question. So मैं इसको h नहीं कहूँगी, I'm gonna call it y. So my 3 lengths are, let the 3 length sides would be x, x and y. पहली बात तो ये clear होनी चाहिए. Number 2, the square base is there of course and the open top. Open top का मतलब है, we all know जो 3 dimensional box होता है, जो box तो बदल के 3 dimensional ही होता है of course. So all the boxes they have 6 faces, है ना. या डस्टर सोच ले माइंड में ज़रा. डस्टर इज़ नॉट ऑफ कोर्स डाइस जो आपका होता है लूडो का जो आपकी होता है, वो जो डाइस होता है जिससे हम खेलते हैं, तो वो डाइस भी आप सोचो अपने माइंड में 6 फेसेस होते हैं उसके, है ना. लोअर बॉटम, फिर अपर, फिर एक साइड, फिर दूसरी साइड, फिर तीसरी, तो 6 फेसेस होते हैं. अब इसमें क्या है कि आपकी बेस जो है वो स्क्वायर है और उसका टॉप है ही नहीं, ओपन है. इट मीन्स इसके तो 5 फेसेस होंगे, एक आपके बॉटम और बाकी जो ऑपोजिट 4 फेसेस हैं वो. अच्छा, ये तो माइंड में रख लिया. अब नाउ द थिंग विच इज़ गिवन टू अस, 3 साइड्स दी हुई हैं, एक्स एक्स एंड हमने को वाई कह दिया. वॉल्यूम इज़ गिवन टू अस एज 4. वी ऑल नो 3 डायमेंशनल जो शेप होती है उसका वॉल्यूम इस तरह से होता है, जो रेक्टेंगुलर हो उसका होता है, मतलब विद स्क्वायर बेस भी होगा, तो इट वुड बी लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट. So what would it be for me? It would be v equals to x into y, which is x square into y. Now this is my volume. ठीक है, वॉल्यूम इज़ गिवन टू मी एज 4. सो आई एम गोइंग टू से ओके 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई. Why am I going to use it? Because I will be getting my value of y from this equation. So it would be y is equal to 4 divided by x square. This is my y. Y is equal to 4 divided by sorry, x square, right? Y is equal to 4 divided by x square. Now let's read the further question. They are saying find the dimensions. Dimensions means you have to find value of x, then again x, then y. X being the length, x being the width which is equal to length in this question, and y being the height. ये dimensions हमने आंसर में find करनी है. बट वो वाली dimensions of the box which will require the least material. Least material का मतलब है they are asking you to find the to show that the area, the surface area of this box should be minimum. Least का मतलब है minima show करना है at these values of x and y. Clear? Now let's check it out. हमारी जो second equation, जो हमारी equation होगी for for that like the function basically जो use होगा, that would here be surface area. You can use it as simple S or simple A. Choice is yours. So surface area क्या होगा यहाँ पे? As I told you, it would have 5 faces because the top is open. ये वाला consider नहीं होगा, ये वाला consider नहीं होगा. Rest of the faces would be considered. उन सब का area अलग अलग से. Now let's check it out. The base is square. So what is the area of the square? We all know length into width, या वो तो तब होता है जब हमारे पास rectangle हो. It is a square, so it would be x into x. Clear? Plus अब सारे एरियाज, सारे फेसेस के जो एरियाज होंगे we will be adding them, and that's how we will be getting our surface area. Okay, now let's talk about this surface now. Now you can see in this surface, let me change the color. Okay, now you can see in this surface which I'm going to color, see the base is again the pink one, x. What about the height? It is y.
है ना. So what would be area of that face? It would be x into y. Let's talk about the next face of opposite. तो definitely अगर इसका x into y है तो इसके opposite face का भी यही होगा x into y. ठीक है. प्लस लेट्स टॉक अबाउट दिस फेस नाउ, और इसके ऑपोजिट का भी वही होगा जो इसका होगा. ओके, नाउ सी व्हाट इज़ द बेस ऑफ दिस x, वही पिंक जो नीचे यूज़ हुआ. एंड व्हाट अबाउट द हाइट? डेफिनेटली इट वुड बी y, ये भी y होगा. सो इट वुड अगेन बी x इंटू वाई. अगर इसका x इंटू वाई है तो इसकी ऑपोजिट का भी वही होगा, प्लस जो इसकी पीछे साइड होगी, सो x इंटू वाई ही होगा. नाउ व्हाट डू आई हैव? आई कैन सी माई सरफेस एरिया, आई एम गोना कॉल इट एज a. इट वुड बी x square plus 4 times xy. See, xy, xy, xy and xy. So can I say 4 times xy? Now this is going to be my function which I am going to use, and I have to minimize it. Least material का मतलब है कम से कम material, तो मुझे इसको minimize करना है for specific value of x. Clear? Now what is a? My a is x square plus 4xy. मतलब मिनिमाइज करने का मतलब है आई विल बी डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो आई एम गोइंग टू से डिफ्रेंशिएटिंग with respect to x, so it would be dA by dx equals to what? 2x plus, oh my god, can I use this y as y? No, I have to replace it with what? With that equation. If you remember, what was our equation? It was x square into y equals to 4. So y was 4 divided by x square. So I have to replace this y over here with this value. So I'm going to write it again. My area would be x square plus 4x, and y would be replaced as 4 divided by x square. Let's do it this way. X square plus 16, x and x cancelled out, so it would be divided by x, which is x square plus 16 into x raised to the power minus 1. Why did I do that? I told you people earlier. Now it would be easy for us to find the derivative. Now differentiating it with respect to x, so it would be, इसको करने लगे हैं, so it would be 2x plus 16 into minus 1 into x raised to the power minus 1, it would be minus 2. This is my first derivative. Now I'm gonna find my second derivative, which would be here, d square a by dx square, and that would be, यहीं से क्योंकि आसानी से निकल आएगा, it would be 2 plus 16 into minus 1 into minus 2 into x raised to the power minus 3. So the answer of second derivative would be 2x plus 32 x raised to the power minus 3. Clear? No, it is not 2x, sorry, it is 2 only. This one is only 2 now. So 2 plus 32 into x raised to the power minus 3. आप इसको खुद करके देखिएगा. And look at the first derivative. It was 2x minus 16 into x raised to the power minus 2. I have to use this equation dA over dx. मुझे इस equation को use करना है to find my value of x for stationary points या for extreme values. So let's get it done. Two x minus 16 into x raised to the power minus 2 would be equating to, we will be equating it to 0. Sorry. So it would be 2x minus equals to 16 divided by x square. इस minus 2 को हम नीचे ले आए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें. So it would be 2x cube equals to 16. X cube is equal to 8. How? This 2 being divided on the other side. Now what? दोनों साइड्स पे आपने क्यूब रूट ले लिया. सो x वुड बी, x क्यूब वुड बी 2 क्यूब. 2 क्यूब मीन्स 8. सो x इज इक्वल टू 2. दिस इज़ माई वैल्यू, x इक्वल्स टू 2. आई हैव टू चेक इफ़ इट गिव्स मी लीस्ट मटीरियल और नॉट. वो कैसे होगा? इफ़ माई सेकेंड डेरिवेटिव यानी डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर एट x इज़ इक्वल टू 2, अगर वो पॉजिटिव होता है तो. लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकेंड डेरिवेटिव. सेकेंड डेरिवेटिव क्या था मेरे पास? इट वॉज 2 माइनस 32 x raised to the power minus 3. So can I write it as 2 minus नहीं था, sorry, it was plus 2 plus 32 divided by
x रेज टू द पावर 3 था तो हम x की जगह पे 2 पुट कर लेंगे. सो इट वुड बी 2 रेज टू द पावर 3. नाउ अगेन एज आई टोल्ड यू इनिशियली कि ये वैल्यू डेफिनेटली कुछ मर्जी जितनी मर्जी छोटी होगी, स्मॉल होगी, बट यू कैन सी वैसे तो स्मॉल नहीं होगी, आंसर वुड बी 6. सो बट यू कैन सी इट इज़ पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन ज़ीरो. अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो डेफिनेटली मटेरियल विल बी लीस्ट, क्योंकि एरिया आपका स्मॉल आ रहा है तो डेफिनेटली कम से कम मटेरियल लगेगा. सो लेस देन ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब क्या है? मिनिमम. क्लियर? सो नाउ आई एम गोना से okay, for x is equal to 2 I have least material. A is minimum. If it is minimum, now I'll be finding my value of y. Hence one length which is x, it is 2 cubic meter dm. It means it is dm. 2 decimeter, again x would be 2 decimeter क्योंकि 2x थे और y मेरा किसके इक्वल था? y was equal to 4 divided by x square. So it would be 4 divided by 4. It is 1. So 1 dm. ये तीन lengths हैं, 1 dm, 2 dm and 2 dm. These are my three lengths which I was supposed to find. Clear? Now I'm going to show you the solution of this question. Okay, this is the solution of this question. You can see look at this, length of the box with the square base be this, width of the box with the square base is this, and height of the box as y. क्योंकि square base इसलिए length और width आपकी x है. Volume क्या होता है? length into width into height. So it would be 4 equals to x into y. Values आपने put की, simply that's it. Let f of x denotes the total surface area of the box. इन्होंने एफ ऑफ एक्स का है, आप उसको ए कह लें या एस डॉट ए कह लें, दैट इज़ योर चॉइस, नॉट अ बिग डील. आप उसको एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं. सो एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ द 4 वर्टिकल वॉल्स, जो मैंने अभी आपको समझाया. स्क्वायर का मतलब है सिर्फ बॉटम स्क्वायर का आपने एरिया लिया, ठीक है. आपने जो टॉप थी वो ओपन थी, उसको हमने ऐड नहीं किया. अगर हम उसको ऐड करते तो वो 2x स्क्वायर हो जाता, ठीक है जी. सो नाउ बाकी कुछ समझा चुकी हूँ मैं, बड़े एक्सप्लेन किया मैंने डिटेल में. अच्छा, वन मोर थिंग हियर, you can see they have done the question like this, a cube minus b cube करके like this, ठीक है. ये तो अगर आप इस तरह करें तो ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा है, करेक्ट है, और उस तरह करें तो भी इट वुड बी करेक्ट, बिकॉज वी विल बी रिजेक्टिंग दिस, बिकॉज दिस विल बी गिविंग अस सम कॉम्प्लेक्स रूट्स. वैसे भी आपकी लेंथ यूज़ हो रही है, इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, नेगेटिव भी ये नहीं हो सकती. सो दैट्स वाई आई लेफ्ट इट दैट वे. आई जस्ट टुक x इज इक्वल टू 2. ठीक है, दिस इज़ द हाफ, फर्स्ट हाफ, एंड दिस इज़ द रिमेनिंग हाफ ऑफ द क्वेश्चन. सो दीज वुड बी योर 3 आंसर्स. आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन डिटेल. ठीक है जी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट आवर क्वेश्चन नंबर 9. Okay, now you can see over here that the question, the figure of course is same, and the question is even the same. An open box of square base of side x and the vertical side is to be constructed to contain a given quantity of water. अब इसमें डेप्थ की बात होगी क्योंकि वाटर आप उस टैंक के अंदर डाल रहे हो, ठीक है. फाइंड द डेप्थ इन टर्म्स ऑफ x, यानी हमने जो उसमें हाइट थी वही इसमें डेप्थ इन टर्म्स ऑफ x होगी, यानी आंसर मुझे x में निकालना है बेसिकली. इफ़ द एक्सपेंस ऑफ द लाइनिंग the inside of the tank will with lead will be least. वही बात, पहले हम आउटर बॉडी की बात कर रहे थे, अब इनर की बात करेंगे, बट प्रोसेस एंड एवरीथिंग वुड बी एग्जैक्टली द सेम. ठीक है, उसी तरह से स्क्वायर बेस है, यानी जो, अच्छा पहली बात ये, इसमें थोड़ा सा चेंज ये भी है, दे हैवंट गिवन यू वॉल्यूम. वॉल्यूम उसको इसमें वॉल्यूम कहें या क्वांटिटी ऑफ वाटर कहें, जो भी कहें, आप उसको क्यू से भी शो कर सकते हैं फॉर क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम वाटर, सॉरी, और वॉल्यूम भी शो कर सकते हैं. ठीक है, अब अगर मैं वॉल्यूम की बात ही करती हूँ, वॉल्यूम मेरा क्या है, लेंथ इंटू यानी विड्थ इंटू हाइट विच इज़ माई वाई. ठीक हो गया, या डेप्थ, इसमें आप वाई को डेप्थ कहेंगे. जब हम लेट लिखेंगे ना, हम कहेंगे लेट एक्स बी द हाइट, सॉरी एक्स बी द लेंथ एंड वाई बी द विड्थ. सॉरी व्हाट द हेल. ओके, बॉक्स हैज़ स्क्वायर बेस अगेन, सो लेंथ और विड्थ दोनों आपकी एक्स होंगी, तो हम कहेंगे लेट एक्स बी द लेंथ एंड एक्स बी द विड्थ एंड वाई बी द डेप्थ. ठीक है, इसमें आप डेप्थ का वर्ड यूज़ करेंगे, जस्ट ये चेंज है. उसके अलावा यू विल से v इज़ इक्वल टू, यानी वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स. अब वॉल्यूम की तो बात नहीं होगी, क्वांटिटी की हो रही है, बट फाइन, हम इसको v से रिजेंबल करा रहे हैं कि द क्वांटिटी ऑफ द वाटर वुड बी x इंटू वाई. क्लियर, वी आर नॉट गिवन बाय देम वैल्यू ऑफ v, या q कह लें इसको, क्वांटिटी कह लें या v कह लें.
वी आर नॉट गिवन दैट वैल्यू, वहाँ पे 4 गिवन था, यहाँ पे नहीं है, बट हमें ये पता है कि इट वुड बी यूज्ड एज अ कांस्टेंट। सो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। वहाँ पे ये था 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इट इज़ v डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन सी इज सेम। अगेन सिमिलरली बिल्कुल वैसा ही सरफेस एरिया क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस, let me write it down over here, so my area would be the same, x square plus 4xy, बिल्कुल वैसा ही, ठीक है जी। Differentiated with respect to x, so dA by dx would be what, 2x plus, अच्छा sorry, replace value of x over here, so it would be x square plus 4x into value of x, y would be v divided by x square, बिल्कुल उसी तरह। I'm gonna do it here. My a is x square plus 4xy, replace value of y square, so it would be x square plus 4x into y. What was value of y, it would be v divided by x square, simplify it, x squared plus 4v, x ने x को कैंसिल आउट किया और नीचे क्या किया तो इट वुड, उसको ऊपर ले आएंगे, इट वुड बी x रेज़ टू द पावर -1, तो v इंटू x रेज़ टू द पावर -1. नाउ दिस इज माई a. Clear? Now I have to find the derivative differentiating with respect to x. It would be 2x plus 4v as it is into -1, ये वाला, x raised to the power -1 which is -2. This is my first derivative going on. Now what is my first derivative? It is dA by dx, which is equals to 2x plus 4v, this is v not x, v, 4v, this would be plus by, not plus बल्कि माइनस, 2x माइनस, ये वाला माइनस में बाहर ले आई हूँ, 4v into x raised to the power -2. This is my first derivative. Now I am going to find my second derivative over here. So it would be d square a would be divided by dx square equals to, इसका derivative क्या होगा, 2 माइनस, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इट वुड बी 4v और पावर आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी -2 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर -3, ठीक है जी। बल्कि मुझे इसको अगले पेज पे ले जाना चाहिए। डी ए बाई डी एक्स वॉज 2x माइनस 4v एक्स रेज़ टू द पावर -1, फर्स्ट डेरिवेटिव। और अब हम सेकंड, इसी से हम यहाँ पर ही सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर वुड बी 2 इंटू 1 मीन्स 2 -4 एज इट इज़ इंटू -1, ये पावर जो थी वो नीचे आ गई, ये तो बल्कि शुरू में नीचे आ गई थी, इट वॉज -2 वी इंटू एक्स रेज़ टू द पावर -3, ठीक है जी। ये -2 -1 हो जाएगा -3, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। 2 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 v रेज़ टू द पावर v इंटू एक्स रेज़ टू द पावर -3। अब वी कैन सी उसी क्वेश्चन की तरह ये फिर से पॉजिटिव आ गया है ना, एक्स क्यूब आपका डिनोमिनेटर में जाके एक्स रेज़ टू द पावर -3 जो है डिनोमिनेटर में जाके एक्स क्यूब बन जाएगा, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, अगेन पॉजिटिव है। और दे वर आस्किंग अस फॉर लीस्ट लाइनिंग, लेड शुड बी यूज्ड एज लीस्ट, तो वो वही मिनिमम आ जाएगा, तो इट वुड बी लीस्ट, बिल्कुल उसी तरह। और यहाँ पे आप फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ x, सो इट वुड बी 4v एक्स रेज़ टू द पावर -2 इक्वल्स टू 0, अगेन इट वुड बी 2x इज इक्वल टू 4v एक्स रेज़ टू द पावर -2, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, सो इट वुड बी 4v डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लाइक योर प्रीवियस क्वेश्चन, सो इट वुड बी 2x क्यूब इक्वल्स टू 4v, yeah, and now 2 1s are 2 2s are, so x cube is equal to 2v. We want value of x, so what are we gonna do, we will be taking cube root on both sides, so x is equal to 2v whole raised to the power 1/3. So now what is my value, अब ये जो आपकी value of x आई है which is 2v होल रेज़ टू द पावर 1/3, इसको आप इसमें पुट कर लें अपने सेकेंड डेरिवेटिव में, और यू कैन सी इट इज़ पॉजिटिव, जस्ट पुट करें, जस्ट पुट इट ओवर हियर, नो नीड टू डू एनी सिंप्लीफिकेशन और एनीथिंग, सिंपली यू कैन सी इट इज़ पॉजिटिव, सो यू विल से ओके ग्रेटर देन 0, सो इट हैज़ मिनिमम एरिया,
or lead will be used as least. ठीक हो गया? After getting that, okay, now x is v 2v whole raised to the power 1 over 3. My x is 2v whole raised to the power 1 over 3. यहाँ तक तो मैं निकल आई. They were asking me to find the depth in terms of x. Depth मतलब जो हमने y ली है. What was my equation of y? It was y was v divided by एक्स स्क्वेयर. मुझे इसका आंसर, दे आर आस्किंग मी टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस डेप्थ, यानी वाई का जो आंसर है इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स, नॉट इन द फॉर्म ऑफ वी और समथिंग एल्स. ठीक है, वी शी उसमें नहीं होना चाहिए, उसमें सिर्फ एक्स होना चाहिए एज पर देयर डिमांड. नाउ व्हाट एम आई गोना डू? आई वांट वैल्यू ऑफ दिस वी, नॉट वैल्यू ऑफ दिस एक्स टू बी सब्सटीट्यूटेड हियर. मुझे इस v की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है. तो डेफिनेटली आई कैन गेट इट फ्रॉम दिस इक्वेशन, है ना. टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे दोनों साइड्स पे क्यूब लें तो इट वुड बी एक्स क्यूब इक्वल्स टू 2v होल रेज़ टू द पावर 1 over 3, और इसका भी क्यूब लिया हमने ताकि ये 1 over 3 कैंसिल आउट हो जाए. नाउ व्हाट, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 2 किसके इक्वल आ गया? v के इक्वल आ गया. आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यू ओवर हियर, सो इट वुड बी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 2 इंटू इस ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़. नाउ कैंसिलेशन करें जी, this one cancelled out with this, so x divided by 2, what is it? This is the depth in terms of x. Clear? That's all they asked us to find. I hope this is understood. Let me show you the solution over here. See, this was the y which we took. ये हमने f of x इन्होंने दे दिया, उसको नाम आप भी दे सकते हैं, आप इसको एरिया जो भी कहें. ठीक है जी. Let me show you over here. Okay, now see, this is required depth in terms of x. Clear? This is the rest of the solution. You can take the screenshot and later on you can read this too, but मैंने इसको बड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया, वैसे there is no need. ये आप लिख लीजिएगा. In other words, surface area will have minimum value because this is greater than 0. ये f double dash of x is greater than 0. So for minimum surface area, the expense will be least for lining lead. Clear? That's it. I hope this is all understood. Okay, now check out your assignment. Your assignment would not be that much. It would be not these questions. I'm gonna write it down over here. It would be question number 2, question number 6, no, question number 5, question number 6, because these are different, and then question number 7 and question number 9. Just these 5 questions. This is going to be your assignment. I hope this is all understood. Very, very important. Please do send me your assignments well in time. Thank you ji. Allah Hafiz.